बीजेपी का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सर्वे करवाइए ना। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने कह दिया है कि जब तक योगी जी की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और दुर्भाग्य तो तब हो गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई बंद है लेकिन रैली शुरू है। जो अपनी माँ बाप की 5वीं संतान है वो कह रहे 2 बच्चे पैदा करे तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। ये गाने वाला रवि किसान लोकसभा में संसद में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून पेश करेंगे। रिपोर्ट कार्ड में कितना नंबर देंगे? 0। लड्डू शंकर भगवान का लड्डू मुंह में ठूस देंगे मोदी जी का। एक भैंस आई थी गाजीपुर में, योग मोदी जी का नाम सुनते ही लात चलाती थी। अब वही हाल हो गया है कि मोदी जी के नाम सुनते ही लोग आपको दरवाजे से भगा देंगे। मैडम कहां है स्मृति ईरानी जी? आप 1 रुपए डीजल पे उठता था तो आप बोलती थी हाय महंगाई हाय महंगाई। अपने तो खुद हारी रहे 2022 में, अब प्रधानमंत्री को भी लेकर डूबे देंगे 2024 में। मैं वापस आ गया हूँ। क्या कहते हैं, किसान का आंदोलन फाइनली जंतर मंतर पहुंच चुका है। पर अब मैं बात करूंगा एक विषय कि हम हमेशा जो इस सरकार की कोशिश रही है ये दिखाने की कि विपक्ष नाकाम है, अयोग्य है, अक्षम है, कमजोर है, इनके पास कोई मोदी जैसा लीडर है जो कह सके कि मोदी है तो मुमकिन है, राहुल को पप्पू बना दिया। कभी क्या हम ये इस विषय को थोड़ा सा ट्विस्ट दे सकते हैं? क्या हम ये अब इसके ऊपर नजरअंदाज कर सकते हैं कि कमजोरियां हमारे बीजेपी में क्या है? असम से लेके यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उनके जितनी भी स्टेट की सरकारें हैं वहां पर सब में प्रॉब्लम है। और इस कमजोरी को विपक्ष को पकड़ना पड़ेगा, इस कमजोरी को हमें देखना पड़ेगा। अब ये जो हमारे लिए क्रिएट किया गया ना कि देयर इज टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि भैया इसके अलावा कुछ भी बेहतर है। पता नहीं उसको क्या नाम देंगे पर वो ही हमको अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो यही हमको यही सोच इसी बेगावे में डाल दिया है कि वी आर ऑल फूल्स, the only people who can lead us is this guy with a long beard and the chanakya, and there is no other leadership available in the rest of the country. This is where it is critical. The first hurdle that the BJP really has is, if you see the videos that are coming up, are the farmers, and it's going to be a bone that's going to get stuck in the throat. What do we have here? Farmers begin a sit-in at Sirsa after talks failed. This was in Haryana. As you know, in Haryana and Punjab, these leaders, BJP leaders, just can't step out of the house. Farmers leaders begin fast on to death, seeking release of accused, and Haryana farmers head for sedition, get bail, union left Sirsa dharna. After his remarks on farm stuff, BJ expels ex-minister for 6 years. This is in Punjab. BJP leaders from Punjab hold a meet with Nada over farm get off. They're not really letting them out. SAD is trying to get its act together. SAD to seek repeal of farm laws, and House tries to unite non-Congress opposition, but I think they should take the Congress along with them, right? Farmers plan march to House on July 22nd without police nod. Police ask farmers to reconsider parliament protest. Farmers get green signal to protest at Jantar Mantar with some riders. Riders are, you'll be followed only 200 allowed, and one, can you imagine the ratio of police and armed paramilitary forces to the farmers was like 1:100 force. And then you start creating this narrative which the farmer have to be very careful about. Intel agencies issue alert, US asks citizens to be cautious, cops to show at farmers at every step to keep protest incident free. Kisan Sansad begins, agri laws face censure. Farmers hunker down on repeal call on day of Jantar Mantar, first day of Jantar Mantar stir. Farmers begin protest at Jantar Mantar. Tomar says government still has an open mind. But how can it have an open mind when their new pretty face Minister Lekhi says calls farmers on protest Mawalis, and later on this lady's never moved out of a house in South Delhi. What business does she have to even comment on farmers? I don't know, right? And then says farmers bear brunt of stock holding curbs as center exempt importers. So it says the center may have exempted imported pulses from stock limits imposed with a view to contain rising food inflation, but the adverse impact of it is being borne mainly by farmers and domestic traders who continue to face stocking restrictions. So this is why, folks, the law is of no use. And later, you're going to see all the videos that are going to come up about the problems that the BJP has. ये मोदी जो है इतना जालिम, इतना अत्याचारी, इतना जुल्मी, इतना निर्दयी, इतना बेरहम, इतना घटिया बेशरम प्रधानमंत्री किसी देश में नहीं हुआ होगा। 200 किसानों के लिए 50,000 पुलिस, 20,000 फौज सड़कों पे खड़ी करके दुखी कर रखा है। उसका दुरुपयोग ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हम मौत से डरने वाले नहीं, मोदी समझ रहे हैं डर जाएंगे। अरे जिंदगी तो बेवफा एक दिन ठुकराएगी, वो तो महबूबा जो साथ लेकर जाएगी। मौत से डरने वाला नहीं है किसान। पश्चिम बंगाल में किसानों ने दिखा दिया, अभी उत्तर प्रदेश में इनकी गुब्बी खोद देंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जब जब चुनाव आता है तो नेता इतनी लंबी चौड़ी वादों की पोटली लेकर आते हैं, आपको सच लगता है कि ये नेता वास्तव में मेरे अपने हैं, मेरे दुख दर्द का ध्यान रखते हैं और मेरे परिवार का भी ध्यान रखेंगे। नौजवानों को इतनी लोक लुभावन बातें होती हैं कि मानो ये सरकार में आ गए तो नौजवानों की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। 2017 की बात थी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनावी रैली में कह रही थी
कि सरकार आ गई तो पूरा रोज बेरोजगारों के दिन बदल जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, सबको काम मिल जाएगा। बड़े बड़े स्लोगन चल रहे थे, काम वाली सरकार, कहाँ गई सरकार, नौकरी दो सरकार, मेरे नारे लगते थे और नौजवानों को लगता था ये सरकार आ गई तो घर बैठे नौकरी मिलना तय है। खैर सरकार आ गई, उसके बाद 4.25 साल बीत गए। नौजवान परेशान कि नौकरी कहाँ चली गई, कोई भी भर्ती निकले वो फंस जाए, और भर्तियों में इतने घोटाले, इतनी जांचें, आप थक जाएंगे। जब जब घोटाले आए सामने तब तुरंत एक बयान आ जाता था सरकार की तरफ से कि हमने एसआईटी गठित कर दी है, घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा, घोटालेबाजों का तबाही हो जाएगी, घोटालेबाज मर जाएंगे, फांसी हो जाएगी, विदेश भेज दी जाएंगे, यानी किस तरह की, यानी कितनी कितनी बातें। वो एसआईटी की जांच की रिपोर्ट कुछ नहीं पता कहाँ चली जाती है। नौकरी मिलती है लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई को मिलती है। बेरोजगार लाठी खाता है, बेरोजगार गाली खाता है, कहीं पानी की बौछार सहता है, कहीं लाठी चादर सहता है, मगर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। किसी इंडिविजुअल से आगे देखने की जरूरत है, और इसको 2 या 3 स्तरों पे आप देख सकते हैं। पहला कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने एक पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करने की कोशिश की सिर्फ 2 मुद्दों पर, शिक्षा और स्वास्थ्य, और इन दोनों मुद्दों पर आज सरकार ने एक तरह से औपचारिक तौर पे मान लिया कि हम फेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मान लिया कि इन 2 मुद्दों पर हम फेल रहे हैं, ये 2 जो देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं उन पे फेल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, दोनों को हटाया गया कैबिनेट से, न सिर्फ विभाग बदला गया बल्कि उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश या बिहार के समीकरणों को देख करके आप देखिए, पिछली बार 2019 में नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि हम टोकन रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे कैबिनेट में। टोकन रिप्रेजेंटेशन से उनका आशय था कि हम सिर्फ 1 मंत्री जैसे शिवसेना ने बनाए थे वैसे हम नहीं लेंगे, उनको कम से कम 3 मंत्री पद चाहिए थे। लेकिन आज 2 साल बाद वो वही काम किया है, 1 मंत्री पद लेकर मान गए हैं। हालांकि इसके बारे में भी तमाम चीजें चल रही है कि नीतीश कुमार जी और आरसीपी सिंह जी में एक मतभेद है। आरसीपी सिंह जी किसी कीमत पर मंत्री बनना चाहते थे और नीतीश कुमार जी नहीं बनने देना चाहते थे। ये तमाम चीजें वहां भी चल रही है। सुशील मोदी जी के साथ ये सर्वविदित है कि वो संजय जोशी जी के काफी करीब रहे हैं। वो उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने संजय जोशी को जब भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, उस समय उनके पक्ष में उन्होंने ट्वीट किया था और ये साफ साफ कहा था कि किसी एक व्यक्ति के इशारे पे पार्टी नहीं चलनी चाहिए, पार्टी किस कुमार जी नहीं बनने देना चाहते थे। ये तमाम चीजें वहां भी चल रही है। सुशील मोदी जी के साथ ये सर्वविदित है कि वो संजय जोशी जी के काफी करीब रहे हैं। वो उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने संजय जोशी को जब भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, उस समय उनके पक्ष में उन्होंने ट्वीट किया था और ये साफ साफ कहा था कि किसी एक व्यक्ति के इशारे पे पार्टी नहीं चलनी चाहिए, पार्टी की संस्कृति नहीं रही है। और वो एक व्यक्ति आज सर्वशक्तिमान है। समय बदला, सबने देखा। और दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी के बारे में कई लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र भाई आसानी से भूलते नहीं है, वो मौके का इंतजार करते हैं, और इसी मौके में सुशील मोदी जी कहीं ना कहीं शिकार हो गए उसके। रही बात उत्तर प्रदेश की, आप उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में एक सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश हुई है। वो भी सामाजिक समीकरण किस तरह से? सामाजिक समीकरण इस ढंग से साधा गया है कि जो पिछली बार जो वोट देने वाला तबका था, जो सबसे एग्रेसिव वोटर था, जो सबसे बड़ा वोटर था, जो उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को देखें तो सबसे ज्यादा थी, वो था ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज को पूरी तरह से इस बार छोड़ दिया गया है और शायद एक अजय मिश्रा लखीमपुर वो भी टोकन रिप्रेजेंटेशन ही है। वो कोई रीता बहुगुणा जोशी या कोई रमापति राम त्रिपाठी या जहां सबसे ज्यादा ब्राह्मण राजनीति प्रभावी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहां से कोई नहीं आ रहा है। और ये बड़ा मिस्टीरियस है कि बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है। दूसरी चीज, पिछड़े वर्गों को आज देखिए सुबह से टीवी पे क्या नैरेटिव चल रहा था, टीवी पे न्यूज कैसे दिखाए जाते हैं, इससे आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं, यहाँ उपस्थित पैनल में सारे लोग हैं। 27 ओबीसी मंत्री बनेंगे। आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा था कि किसी कैबिनेट एक्सपेंशन में ये बताया गया हो कि फला समाज के इतने मंत्री बनेंगे। सब दिख रहा था कि ओबीसी समाज के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश में जो नाराजगी है, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने भी कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया कि नरेंद्र मोदी जी अब गैर यादव ओबीसी समाज के इकलौते नेता नहीं रहे, वो अब सिर्फ एक छोटे जातीय समूह के नेता में तब्दील होकर रह गए हैं। 2017 में ऐसा कुछ नहीं था, एक टोकन प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया, उनके पिछड़ावाद के चेहरे पे लड़ा गया। उन्होंने हर चुनावी सभा में अपनी ओबीसी आइडेंटिटी को जिस ढंग से फ्लॉन्ट किया, ये सब आप लोगों ने देखा। लेकिन आज के विस्तार में क्या हुआ, एक समाज, उससे 3 मंत्री बनाए जा रहे हैं, 2 या 3 उत्तर प्रदेश से बनाए जा रहे हैं, एक गोरखपुर इलाके से, एक मिर्जापुर इलाके से। कहीं ना कहीं ये कोशिश दिख रही है कि ब्राह्मण समुदाय की जो तथाकथित या वास्तविक जो भी नाराजगी हो, अगर कोई नाराजगी है तो उसको राजपूत और कुर्मी वोटों को क्लब करके उसको काउंटर करने की कोशिश की जाए, इन सब अलग अलग रेस्पेक्टिव रीजन्स में। इसके अलावा जनता दल बम तारीफ करी योगी जी की, और योगी जी की टीम तो फुल के कुप्पा कि अरे आप तो बिग बॉस ने तारीफ कर दी, सारा मुद्दा खत्म, अब पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है जो बोल दे। तो अब योगी जी मतलब ब्रांड। दिन में बनारस में मीटिंग थी और शाम को पदाधिकारियों की भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मीटिंग थी। राधा मोहन सिंह जी जो प्रभारी उत्तर प्रदेश के, वो आ गए। अब स्वाभाविक है कि राधा मोहन सिंह आ जाएंगे तो बड़ी बात तो होती है, प्रभारी हैं, एक चीज़ मॉनिटरिंग करते हैं।
मीटिंग शुरू होने का नंबर आ गया, मुख्यमंत्री पहुंच गए, स्वतंत्र देव जी तो थे ही राधा मोहन जी के साथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंच गए, और वही मूंगफली, आखिरी मूंगफली कड़वी वाली बात, केशव मौर्य नहीं आए। समझ में आ गया ना आपको? दिन में प्रधानमंत्री जी तारीफ करते हैं योगी जी की, शाम को मीटिंग होती है, प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग होती है, राधा मोहन जी आते हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी के दफ्तर पहुंचते हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचते हैं, और केशव मौर्य मीटिंग में नहीं आते हैं। अब इससे आगे भी कुछ बताऊं या आप समझ गए होंगे? फिर ये बीजेपी के लोग कहेंगे कि मैं तो बस बाल की खाल निकालते रहता हूं। लेकिन मेरे भैया, केशव मौर्य का मीटिंग में ना आना पूरे उत्तर प्रदेश में मुद्दा बन गया। केशव मौर्य ने अभी तक नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ ही हमारा चेहरा होंगे। केशव मौर्य ने अभी तक नहीं कहा कि हम योगी आदित्यनाथ को नेता मानकर चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बम 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 बातें करी, बड़े मेहनती हैं, बड़े कर्तव्यनिष्ठ हैं। एक बार भी ये नहीं कहा कि बड़ी ज्यादा सीटों से चुनाव जीतेंगे और अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। जेपी नड्डा जी ने अभी तक नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अमित शाह ने अभी तक नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा होंगे। तो फिर कहा किसने? कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने, जिनकी खुद की कुर्सी का भरोसा नहीं है। इतनी बार प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं हो चुकी हैं कि कब पता नहीं कब भाई कैबिनेट में पहुंच जाए। मुझे बता दे उत्तर प्रदेश सरकार, मुझे बता दे भारत सरकार की 4 लाख नौकरी कहां मिली? ईवीएम मशीन का हम विरोध करते हैं, ईवीएम मशीन का विरोध करते हैं। द्रौपदी चीरहरण हुआ है और धोखे की लड़ाई हुई है, झूठ की लड़ाई हुई है। 5 सितंबर की पंचायत ये तय करेगी कि लंका दहन किस दिन होगा। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। अंदर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, सब कुछ ये पहचानती है, ये पब्लिक है। एक वोट मिलने वाला नहीं है। यानी भारत की भोली भाली जनता से दान रूपी, वोट रूपी भिक्षा मांग के ठगने का काम किया था, उसी प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। मानवीय मूल्यों में गिरावट आई है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सत्यता कुछ और है। 2022 में क्या होने वाला है, इसके पत्ते हम बहुत जल्दी खोलेंगे। भारतीय राजनीति को न दिखने दें एज द मेन कंटेंडर, क्योंकि उनका उसको अंडरमाइन करने की पूरा प्रयास होगा। और जैसा कि देखने में आता है और शक होता है, और बात भी चर्चा में भी बहुत है ये बात कि ओवैसी जो हैं वो बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा जो 1 पॉइंट प्रोग्राम रहेगा वोट काटने का। ये और काटेगा वोट किसका कटेगा? मुस्लिम वोट ज्यादातर जाना है समाजवादी पार्टी को। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है और ये सबको इस चीज का एहसास है, समाजवादी पार्टी वालों को भी होगा। लेकिन संजय ने जो बात कही है, बात सही है कि बाय डिफॉल्ट अखिलेश यादव के सपोर्ट में लोग पंचायत इलेक्शन में जो टर्न करे, उसके 2 कारण रहे होंगे। एक, कोरोना में जिस तरह लोगों ने सफर किया, उनका एंगर था, उनका गुस्सा था बीजेपी के अगेंस्ट, योगी आदित्यनाथ सरकार के अगेंस्ट। और दूसरा, वेस्टर्न यूपी में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है जो दिल्ली के बॉर्डर पे, उसका भी असर हुआ। क्योंकि ये बात सही है कि अखिलेश यादव, जैसा आपने कहा कि ऑपोजिशन का रोल बिल्कुल प्ले ही नहीं कर रहे थे, घर ही में बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये बिल्कुल सही है कि बाय डिफॉल्ट लोगों को अंदर से ये दिख रहा है कि अगर कोई पार्टी लड़ सकती है बीजेपी से तो वो है सपा, तो उसको ही ट्रीट करके चलेगी। मैं आगे भी और ज्यादा, अब तो खैर मैदान में भी उतर आए और आज काफी अच्छा वो प्रदर्शन रहा है। बहुत जगह से विजुअल्स मैंने भी देखे कि हर जिले पे समाजवादी पार्टी से काफी, पुलिस से काफी कन्फ्रंटेशन हुआ है उनका और काफी एक्टिवली लड़े। तो ये अगर आते हैं कि मायावती का बड़ा स्पष्ट है, मायावती अपनी इनिंग्स पॉलिटिक्स में प्ले कर चुकी हैं और आज जो कुछ वो कर रही है, चाहे वो डर के सीबीआई और ईडी के डर से कर रही हो या जिस वजह से भी कर रही हो, लेकिन वो एक खामोशी से बीजेपी को ही हेल्प करने लगी, जो उनको कहा जाता है शायद वही करती। इनका गुंडा राज खत्म करने का दावा हमने देखा, शर्म आती है ऐसी सरकार। एक दलित समाज की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। योगी जी, आपकी तानाशाही से ये उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी अपने एक देश के पत्रकार के लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द नहीं बोल पाते, 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ रुपए में राम के नाम पे बेच दी। अब भाजपाइयों का नारा हो गया, रामलला हम आएंगे, चंदा चोरी कराएंगे। चंदा चोरों से, चंदा चोरों से। So folks, in conclusion, be pre-warned. The government is going to do its best to make us believe again through its control over media, bought out or coerced through, as you know, ED, etc., that there is freedom. The opposition is a bunch of untrustworthy, anti-national non-natives. But we have to stay focused and think of the country's future and our children and grandchildren. And everyone must focus on performance, whether it's economic, we know it's diet, whether it's health, it is diet, whether it's democratic freedoms, all of that is in threat. Management of COVID, useless. Is the government most importantly truthful to us? Folks, and therein lies the issue. Besides the jasusi and jasusi and jasusi. ये झूठ सरकार है, इसको आपको उस अंदाज से देखना है, ये नहीं देखना कि जो विपक्ष है वो उसकी क्वालिटी क्या है।
क्योंकि उसकी क्वालिटी तो उभर के आएगी ही। पर आपको इस वाली जो सरकार है उसके परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। जय हिंद।